हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं आज का 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम पोलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं। थर्ड आज डे है अपना करने का, थर्ड लेक्चर है अपना, पार्ट थर्ड। तो इसमें हमें करेंगे आगे थोड़ा सा। कल मैंने क्यूबिक तक आपको बता दिया था, क्यूबिक की रिलेशनशिप का क्या वैल्यू होती है, कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, है ना। तो उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मैंने कल आपको बता दिया था लास्ट वैल्यू में। तो उसके बाद वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन है, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन आज के लिए। Verify that 2, 1, 1 are zeros of this polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients। जहां से मैंने कल एंड किया था वहीं शुरू कर रहा हूं। सो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना 2, 1 और 1, दीज आर द जीरोस। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था किसी भी पोलिनोमियल में वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी जीरो को उसमें x की जगह पे वो 1 by 1 वो रखना होता है ना। तो सबसे पहले हमारे पास px गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है ना। तो वी हैव टू वेरीफाई दैट दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक x इज इक्वल टू 2, देन इट विल बी 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 and minus 2, then it will be 8 minus 2 to the 4, 4 4 the 16, then this is 10 and minus 2, and this will be 10 plus 8 18 minus 16 minus 2, that is also 18, that is equal to 0. So hence we can say that 2 is the zero of this polynomial. Clear? Then we will take x is equal to 1, this will be 1 cube minus 4 into 1 square plus 5 into 1 minus 2, and this will be 1 minus 4 plus 5 minus 2, and this will be 5 plus 1 6 and 4 plus 2 6, that is also 6, that is minus 6, and this will also be 0. And similarly third 0 is 1, and again this value will be 0. So we can say that these three values are the zeros of the given polynomial. After that we will have to verify the relationship between zeros and coefficients, and for this we will have to opt for the that portion that we have done earlier in the previous lesson. So that was alpha plus beta plus gamma, that is equal to minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is equal to c by a, and third one was alpha beta gamma is equal to minus d by a. And for this we will have to use ABCD, and here we can say a is equal to 1, b is equal to minus 4, c is equal to 5, and d is equal to minus 2. So we will have to put the values of alpha beta gamma, that means alpha is 2, beta is 1, and gamma is 1. So alpha plus beta plus gamma will be 2 plus 1 plus 1, that will be 4. Clear? And right hand side will be minus b by a, that means here b is minus 4, that is minus minus 4 divided by a is 1, so it is minus minus plus 4 by 1, that is 4. So it is verified that alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. Similarly the product of zeros in pairs, so alpha beta will be 2 into 1, that is 2, plus beta into gamma, that will be 2, and again gamma into alpha will be 2. This one will be 2 plus 2 4 plus 1 5, then this is equal to c by a. C, that means c is 5 and a is 1, so it will be 5 by 1, and we can say it is 5, so 5 is equal to 5, hence this one is also verified. And last but not the least is alpha beta gamma, so it will be 2 into 1 into 1, that it will be minus d by a, and here d is equal to minus 2, a is equal to 1, that is it equal to plus 2, minus minus plus 2, 2 1 ja 2 and 1 ja फिर से 2, then it will be 2 equal to 2. So all the three relationships are verified. So next question is alpha beta gamma are zeros of this polynomial, then find the value of alpha inverse plus beta inverse plus gamma inverse. This minus 1 means inverse, inverse means 1 by alpha, alpha inverse means 1 by alpha, beta inverse means 1 by beta, and gamma inverse means 1 by gamma. So we will have to find the value of 1 by alpha plus 1 by beta and plus 1 by gamma. So for this we will have to do the LCM of these three factors. So it will be alpha beta gamma, LCM will be alpha beta gamma, and for this it will be beta gamma plus gamma alpha plus alpha beta. Clear? So this is the required value that we have to find.
Okay, then for this we will have to use the values of product, sum of product in pairs and product of zeros. Two values will be used here. So a is equal to 6, b is equal to 3, c is equal to -5 and d is equal to 1. So as we know, alpha plus beta plus gamma will be minus b by a, that is equal to minus 3 by 6, that is minus 1 by 2. Then after that it is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, then it is equal to c by a, that is minus 5 by 6. Clear? So minus 5 by 6, as it is alpha beta gamma, that is minus d by a, that is minus 1 by 6. Clear? So we will have to put the values, required values over here. So it will be minus 5 by 6 divided by minus 1 by 6. Cancel out each other, then the result will be 5. So this is the answer. Next question, next portion. देखिए अब तक हमने कर चुके ये पोर्शन, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन. उसमें क्या है कि आपको डिवीजन एल्गोरिथम याद रखना है. डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम वही है जो यूक्लिड में होता है. फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियोज आप देख लीजिएगा, उससे पता लग जाएगा एल्गोरिथम क्या होता है. सो वही चीज यहां पर है. दैट मीन्स आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है ना. तो ये आपको कंसेप्ट छोटी क्लास में भी आ जाते हैं, ये तो नॉर्मली बात है. तो वही कंसेप्ट यहां पर यूज होना है. बस आपको ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिनोम, जैसे नंबर था ना, नंबर में होता है जैसे एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ कोशेंट आएगा ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे है. एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और ये ध्यान रखिएगा. और उसके बाद कुछ कोशेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा. तो एक जो मेन पॉइंट जो इसमें नोट करने का वो ये है कि जो इनमें क्या होता है, इनमें डिग्रियां होती हैं, डिग्री होती है इनके अंदर ना. डिग्री मीन्स जैसे ये है, इसकी ये है क्वाड्रेटिक, तो इसकी डिग्री 2 है ना. इसकी डिग्री है 4, हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 डिग्री है इसकी. सो आपको ये याद रखना है कि डिविडेंट जो है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा ना, रिमाइंडर, उसकी डिग्री दैट इज, अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा याद है, उसकी डिग्री जो होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. डिवाइजर की डिग्री से हमेशा लेस ही रहेगी. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये डिवाइजर लेते हैं, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं डिवाइजर में, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा ना, तो उसकी डिग्री जो आएगी वो या तो लीनियर, उससे कम ही आएगी, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं आएगी. उससे कम वाली कौन कौन से हो सकती है? लीनियर हो सकता है, या कॉन्स्टेंट हो सकता है, या जीरो पॉलिनोमियल हो सकती है. क्लियर हुआ? तो या तो रिमाइंडर जो है जीरो आएगा, या फिर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और या फिर क्या आएगा? लीनियर. क्वाड्रेटिक से लेस ही रहेगी डिग्री उसकी. ठीक है. तो यही चीज यहां पे है. अब हमें एक क्वेश्चन में आपके सामने बोर्ड पे है, आपके देख सकते हैं. चेक वेदर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट. आपको चेक करना है क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. देखिए आपको पता है फैक्टर का मतलब होता है जब वो नंबर जो है उस चीज को डिवाइड कर दे उस दूसरी चीज को, तो वो फैक्टर बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल 8 है जैसे, ठीक है ना, 8, उसका हमें पता है एक फैक्टर 2 ले सकते हो, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. क्लियर हुआ? तो कोई भी नंबर किसी भी दूसरे नंबर का फैक्टर तभी होता है जब वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर दे. क्लियर हुआ? जब वो कोई चीज दूसरी चीज को कंप्लीट डिवाइड करती है तो उसको आप बोलते हैं इसका फैक्टर है. क्लियर? सो वही चीज यहां पे करनी है. तो आपको रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए यहां पे बस. ठीक है. तो आपको क्या करना है, ये अगर हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये बड़े वाले पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर शुड बी 0 आना चाहिए रिमाइंडर. और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो दैट मीन्स इट इज फैक्टर. कंप्लीट डिवाइड करने वाला ही तो फैक्टर होता है. देखिए यहाँ पे आपको प्लस में क्या आएगा? 0 ही तो आएगा. दैट इज यहाँ पे फैक्टर ये होता है रिमाइंडर, है ना. तो रिमाइंडर 0 आएगा तभी हम कहेंगे वो उसका फैक्टर है. ठीक है ना. तो बस ये चीज कंसेप्ट है. तो आपको कैसे करना है? सिंपली 3x raised to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2, and this is divided by x square plus 3x plus 1. So we have to divide this polynomial by quadratic polynomial with the polynomial by quadratic polynomial. So the first of all we will get 3x square in the quotient, and this will be 3x4 plus 9x cube plus 3x square. Negative, 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 then this will be cancel out, then it will be minus 4x cube minus 10x square. So next value will be minus 4x.
we will have to make it equal to this from first value, and for this we will have to use minus 4x, then this will be minus 4x cube plus 4 3s are 12, so minus 12x square minus 4x and 2x here, so it will be plus and plus. Clear? So it will be 2x square plus 2 plus 4 6x or plus 2, then after last will be 2 and it will be 2x square plus 6x plus 2. It will be negative, 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 and it will be 0. So we can clearly see here that the remainder is 0, and if remainder is 0, then we can say this is the factor of this biquadratic polynomial. If the remainder is not equal to 0, then we will say that the given polynomial is not the factor of the second given polynomial. Clear? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चनों में है, थोड़ा सा आपको या तो आर डी शर्मा में मिलेगा या एलिमेंट्स में मिलेगा, एनसीईआरटी में शायद ना हो, लेकिन एग्जाम्पलर में मिल सकता है आपको ये। सो क्वेश्चन इज what should be subtracted from this polynomial so that it will be divisible by this. क्लियर? मीन्स आपको ये बताना है कि इसमें से आप क्या माइनस करेंगे इस ऊपर वाले पोलिनोमियल में से कि वो ये वाली पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो आपको ये बताना क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब आप एक पोलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर शुड बी 0, है ना। अगर वो फैक्टर है तो उसका, अगर वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये फैक्टर है या डिविजिबल है तो वो रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है ना। तो इन केस अगर आप इसको डिवाइड करके, आप पहले डिवाइड कीजिए इस पोलिनोमियल को, बड़े वाले को छोटे वाले पोलिनोमियल से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, इट मीन समझ जाइए कि अगर मान लीजिए रिमाइंडर 2 बचता है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे क्वेश्चन में अगर हमारा डिविडेंड के अंदर अगर 2 कम होता तो 2 रिमाइंडर नहीं बचता ना, तो इट मीन्स 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो हमारा जो डिविडेंड था उसमें से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो कंप्लीट फिर रिमाइंडर बचेगा नहीं, दैट विल बी 0। क्लियर? तो अब हम यही चेक करना चाह रहे हैं कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोलिनोमियल। सो फॉर दिस वी हैव टू डिवाइड the larger polynomial, that is biquadratic polynomial, by small polynomial, that is quadratic polynomial. So first value will be 2x square, that it will be 8x cube 4 plus 3 to the 6x cube minus 4x square. It will be negative, negative, and then positive. It will be 8x cube plus 2x square plus 7x. It will be then 2x, it will be 8x cube plus 3 to the 6x square minus 4x. Clear? So it will be negative, negative, and then positive. Clear? It will be minus 4x square plus 11x, minus 4x square plus 11x, and then minus 8. Then last one will be minus 1. It will be minus 4x square minus 3x or plus 2, and it will be plus and minus. It will be 14x and minus 10. That means if we divide biquadratic by this quadratic, and if we want to make it divisible by this quadratic, what should we do? For this we have to subtract this portion from this biquadratic polynomial, because if this portion will be subtracted from this polynomial, biquadratic polynomial, the remainder will be 0. Remainder will be 0, and if remainder is 0, then we can say this polynomial is completely divisible by this polynomial. So we'll have to write the answer 14x minus 10 must be subtracted from the polynomial, biquadratic polynomial. क्लियर? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आप देख सकते हैं, obtain all the zeros of this polynomial if 2 zeros are this and this. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बाइक्वाड्रेटिक है तो आप समझदार हैं। बाइक्वाड्रेटिक मतलब मीन्स मैक्सिमम पावर 4 है ना, तो 4 जीरो जाएंगे इसके।
4 जीरोज में से आपको 2 गिवन है, पूरे आपके सामने 2 जीरोज गिवन है, तो आपको ये 2 जीरोज गिवन है और 2 जीरोज बचे हुए हैं वो भी फाइंड करना, मतलब ऑब्टेन ऑल का मतलब सारे ही, दो तो है ही, दो निकालने, सिंपल सी बात है ना, क्लियरली बात कहें तो दो गिवन है, दो निकालने हैं। वो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझिए कैसे करना है। सबसे पहले आप जानते हैं अगर हमें जीरोज पता है तो फैक्टर्स भी पता है, कल भी बताया था और आज भी बताया, क्यूबिक में भी बताया मैंने फैक्टर्स कैसे बनते हैं। मान लीजिए जीरो है अल्फा, तो फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा, है ना। अगर बीटा अगर जीरो है तो एक्स माइनस बीटा, वही चीज यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे एक दो तो आपको दे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये रखे हैं ये और ये, तो आप फैक्टर बता सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले एज √5/3 and -√5/3 are zeros given, so factors will be, factors क्या होंगे, x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे √5/3 ले लेते हैं, ये अल्फा बोल देते हैं, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, एंड x माइनस बीटा, बीटा भी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ। देखिए सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू अल्फा अगर आपका जीरो है, x इज इक्वल टू अल्फा जीरो है तो x माइनस अल्फा फैक्टर बनता है, तो उस साइड नेगेटिव कर देते हैं, जो भी वैल्यू उसको नेगेटिव कर देते हैं, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब क्यूबिक में हमने क्या किया था, 3 फैक्टर्स लिए थे और तीनों की प्रोडक्ट की थी, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, और बाई क्वाड्रेटिक में कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर्स होंगे। अब 4 फैक्टर्स जो है, अब उन 4 फैक्टर्स का क्या होगा समझ सकते हैं आप, उस 4 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर तो आपके पास है, ठीक है, तो 2 और चाहिए। तो अभी आपको एक मैंने कंसेप्ट कराया था, देखिए जो कोई किसी का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर शुड बी 0 होना चाहिए ना, तो जो कोशेंट आएगा और जो डिवाइजर है उन दोनों की प्रोडक्ट जो होगी प्लस में रिमाइंडर क्या होगा 0, तो वही तो फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों फैक्टर्स जो है वो हम क्या रखेंगे, उसको डिवाइजर रखेंगे, क्या रखेंगे, डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या बन जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट बन जाएगी। सो a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी होगी, ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बन गई। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है ना। तो ये 2 फैक्टर्स को मैंने इकट्ठा कर लिया क्योंकि प्रोडक्ट तो चारों की होनी है, जैसे क्यूबिक में 3 की प्रोडक्ट की थी, बाई क्वाड्रेटिक में 4 की प्रोडक्ट आएंगी, तो 2 की तो हमें गिवन है, 2 की प्रोडक्ट तो कर दी हमने, पता थी। अब ये तो ये फैक्टर हो चुके हैं, 2 को मिला के मैंने 1 बना दिया। अब ये जो है वो इसके फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। सो आप देखिएगा 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये तो थी आपकी बाई क्वाड्रेटिक। इसके 2 फैक्टर्स हमें पता थे, उनको इकट्ठा करके मैंने बोल दिया x स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। तो अब बाकी दोनों फैक्टर हमें चाहिए, क्योंकि 2 जीरो चाहिए तो 2 फैक्टर चाहिए, तो 2 फैक्टर चाहिए, तो यहाँ पे जो कोशेंट आएगा ना वही फैक्टर दे देगा अपने आप, उसको क्वाड्रेटिक आएगी, कंफर्म है, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है वो भी क्वाड्रेटिक होगी, तभी तो प्रोडक्ट बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। 2 2 जा 4 हो जाता है। तो इससे डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले आएगा आपका 3x स्क्वायर, तो 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल होके क्या बचेगा 5, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं, आपको पता है, क्यूब के नीचे क्यूब आएगा और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये स्क्वायर वाली टर्म है तो एक छोड़ के लिखना आपको, माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, 6x क्यूब नेक्स्ट आ जाएगा और प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 10x ये आ जाएगा, और बाद में कर लेंगे माइनस 5 को, तो नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 6x प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 3 2 जा 6, ठीक है ना, और 5 2 जा 10, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ माइनस 10x, ये बचेगा, एक छोड़ के बचेगा क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू x वाली आएगी तो x के नीचे ही लिखी जाएगी यहाँ पे। सो माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर यहाँ से और माइनस 5 यहाँ से बचा हुआ है, तो प्लस 3 पे चला जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, देख सकते हैं आप सॉल्व करके, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 0,
क्लियर हो गया ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि डिवाइड तो होना ही था, रिमाइंडर 0 ही आना था, वो तो ठीक है, बट हमारा मेन टारगेट था कोशेंट फाइंड करना, क्योंकि जो कोशेंट है वही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये फैक्टर जो है वो इस पोलिनोमियल को डिवाइड करके कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर तो है ही, वो तो पता ही हमें। अब बाकी दो फैक्टर कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, जो हमें 2 जीरोज और चाहिए ना, 4 जीरो थे, दो तो हमें दे रखे हैं। सो यहां से आप क्या जाएंगे, हम सोल्व कर देते हैं इसको, 3x² + 6x + 3। इसको सोल्व करने से आपके जो रिजल्ट आएगा ना वही आपके फैक्टर्स हैं, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। = 0 रख के 3 कॉमन निकाल लेते हैं, x² + 2x + 1 = 0, और आप जानते हैं इसके फैक्टर बनेंगे x + 1 × x + 1 = 0। तो आप देख सकते हैं x = -1 क्यों आया, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x + 1 = 0, आइदर दिस = 0 और x + 1 = 0, so x = -1 और x = -1, so zeros are √5/3 -√5/3 1 -1 and -1। मैंने ये दोबारा से क्यों लिखे, क्योंकि पहले से दे रखे थे, वैसे तो ये 2 जीरोस तो थे पहले से, लेकिन इसमें देखो स्टेटमेंट देखिए क्या है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस। मान लीजिए आपने सिर्फ ये दोनों लिख दिए कि हमने तो यही फाइंड किए हैं बस -1 और -1, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला कि आपके जीरो सिर्फ 2 हैं, ठीक है ना। तो आपको बोला गया क्वेश्चन ये है ऑल जीरोस, क्वेश्चन ये है ऑल जीरोस बताइए, तो आपका आंसर अगर -1 लिखेंगे तो ये कॉमन सेंस निकाला जाएगा कि सिर्फ रिजल्ट में -1 और -1 है, बट बाई क्वाड्रेटिक है और बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोस होने चाहिए, तो इसलिए आपको चारों ही लिखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ना, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी में की बात कर रहा हूं, तो वो आप देख लीजिएगा, और इसको आप अगर आपकी हेल्प जरूर मिलेगी इससे, मुझे पता है, आप इसको मैच कर लीजिएगा उस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ, आप दोनों को मिलाओगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 का ही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। इफ दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पोलिनोमियल, रिमाइंडर इज x + a, देन फाइंड k and a। क्लियर हुआ, आपको इस पोलिनोमियल को उससे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर x + a आता है, तो आपको k और a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। शुरू करें, चलिए पहले डिवाइड करके देख ही लेते हैं रिमाइंडर आता है, उसके बाद की सोचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले x⁴ -6x³ + 16x² -15x + 10 डिवाइडेड बाय x² -2x + k। तो स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं इसको पॉलिनोमियल से, ठीक है। सबसे पहले आएगा x² आएगा, x⁴ -2x³ + kx² माइनस प्लस माइनस, ये बचेगा आपके पास -4x³ प्लस, इसको थोड़ा सा ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ पे ये x² है, ये x² है। देखो ये तो था 6 और 2, इसको तो सोल्व कर दिया है ना, इसको तो सोल्व करके 4 आ गया था, -6 और +2 था, बट यहाँ पे दोनों ये k है और ये 16 है, तो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट का तो हमें नहीं पता कि क्या k की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता, तो एज इट इज लिखना होगा। उसके लिए क्या तरीका है, कॉमन निकाल दीजिए, x² को कॉमन निकालिए। जब कोई टर्म्स डिफरेंट आ रही है, अनलाइक टर्म्स है, तो आप उनको कॉमन निकाल लीजिए उनमें से। तो इनको इकट्ठा x² बाहर निकाल देंगे इन दोनों के साथ, तो +16 है और -k है, तो आपको नहीं पता k की वैल्यू क्या है, तो आप 16 - k ही छोड़ देना, -25x। नेक्स्ट आएगा -4x, -4x³ और माइनस माइनस प्लस 8x² और -4kx, ठीक है, और इट विल बी प्लस माइनस एंड प्लस, फिर से कैंसिल आउट हो गया। अब कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, ये x² है, ये x² है, तो ये +16 था, ये -8 था, इसको तो कर ही सकते हैं, तो ये बचेगा 8, 16 में से 8 माइनस तो कर ही सकते हैं। अब माइनस के एज इट इज, क्योंकि इसमें कुछ माइनस करना नहीं है, एज इट इज छोड़ देंगे इसको, x² ऐसे का ऐसा है, प्लस ये फिर वही सेम केस आ गया जो अभी किया था, क्या इसमें k है साथ में, इसमें नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे, और कोशिश कीजिए अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला पहले लिखिए, ठीक है। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो माइनस कॉमन निकाल के दोनों को प्लस लिख लीजिए, तो कॉमन सेंस की बातें जो आपको बेसिक बातें, तो +4k रहेगा और -25 हो जाएगा यहां से, ठीक है, और माइनस में क्या है, +10, सॉरी +10 और था वो एच नोट कर लिया। अब आएगा +8 - k,
क्यों किया मैंने? क्योंकि रिजल्ट देखिए हमें यहाँ चाहिए फर्स्ट टर्म 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है, साथ में क्या चाहिए 8 माइनस के, लगा देते हैं 8 माइनस के, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती जाएगी आगे, लास्ट स्टेप है वैसे तो। देखिए इसको करते हैं इससे, तो प्लस 8 को किया -2 से तो -16, और ये क्या था -2 है ना, ये माइनस के था, -2 था तो +2k × x। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप आराम से समझ लीजिएगा। 1 बाई 1 इसकी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 2 से -2 से एक बार इसकी की तो -16, -2 से -k की इससे की तो +2k, प्लस फिर लास्ट वाली ब्रैकेट वाले पार्ट को इससे करते हैं तो आपका आएगा 8k - k स्क्वायर। k को 8 से किया 8k और k को k से किया k स्क्वायर, माइनस, और इनके साइन चेंज करने हैं आपको पता है, प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए इसका क्या करें, ये तो आपको इसके हिसाब से चलेगा ना। तो फिर वही यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या, सोल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, और इसको जब आप, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जब आप सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 4k था, ये -2k था, तो ये बचेगा 2k, -25 + 16 यानी कि बचेगा -9, और सिमिलरली यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट है तो ये बचेगा +k स्क्वायर, पॉजिटिव था तो पहले लिखेंगे पॉजिटिव को, फिर -8k और +10। ठीक है, तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया हमारे अकॉर्डिंग जो हमने डिवाइड किया है। बट जो रिमाइंडर जो बोला है क्वेश्चन में वो कहा है x + a होना चाहिए, है ना। तो x + a जो है और हमारा जो रिमाइंडर आया वो सेम होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए, ये बोला गया। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रिमाइंडर्स, जो कंपेयर करना है रिमाइंडर्स को, तो फिर देखिए क्या आता है। देखिए ये आपका जो आया है रिमाइंडर वो है, और हमें जो गिवन था रिमाइंडर वो था x + a। इट मीन्स यहाँ पे x तो ठीक है, x के साथ जब यहाँ पे तो मतलब कुछ नहीं था, 1 कह सकते हो, आप समझ सकते हो 1 है, 1 × x समझ सकते हो, तो 1 है होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आया, 2k - 9 आ गया, है ना। तो आपको क्या करना है, 2k - 9 जहां पे था वहां पे होना चाहिए 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x + a ही रिमाइंडर आना चाहिए, दैट मींस ये जो प्रोडक्ट में साथ में आया है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, 2k = 10 और k = 5। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू k जो हमें फाइंड करना था एक तो वो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसी तरह से सिमिलरली ये पार्ट आपका कांस्टेंट है, विदाउट x है इसलिए, है ना। x के बिना जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कांस्टेंट माने जाएंगे। तो 3 है तो तीनों सही, ये तीनों ही कांस्टेंट है। इक्वल टू क्या लेंगे, a जो गिवन था, है ना। तो हम क्या करेंगे, a = कंपेयरिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 8k² - 8k + 10, तो a = हो जाएगा 5² दैट इज 25 -8 × k की जगह 5 + 10, देन इट विल बी 25 - 40 + 10, और ये हो जाएगा 35 - 40 एंड आंसर इज -5। सो आंसर इज k = 5 एंड a = -5। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर से मिलेंगे। और तब तक अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बच्चों तक में पहुंचाइएगा। और जितना हो सकेगा अपने फैमिली में, अपने आस पड़ोस में जो बच्चे हैं 10th to 12th जितने बच्चे हैं उन सबके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ पाए, उनके पास भी वैरायटी मिल जाएगी उनको पढ़ने के लिए। और हो सकता है जो अच्छा लगे उसमें से पढ़ लें वो, और हो सकता है जो अच्छा लगे, मतलब हो सकता है आपने स्कूल वाला भी अच्छा लगे, हो सकता है ये वाला अच्छा लगे, तो जो अच्छा लगे ऑप्शन हो जाएंगे उनके पास पढ़ने के लिए। तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।